Good morning to everyone present here. On behalf of entire DDPS fraternity, I would like to extend my warm greetings to everyone. सर्वप्रथम सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। एक बार हम सब मिलकर उमंग और उत्साह के साथ भारत माँ का जयकार करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! True independence and freedom can only exist in doing what is right. Freedom in the mind, faith in the words, and pride in our souls. Let's salute the nation on this Independence Day.
जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले। ओ माँ, ओ माँ, जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले। हंसते हंसते भारत माँ हम तुझ पे हो कुर्बान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे। सुंदर है जग में सबसे, नाम भी सबसे न्यारा है, वो देश हमारा है, वो देश हमारा है। जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, वो देश हमारा है, वो देश हमारा है। तो साथियों, वक्त हो चला है कि हम तिरंगे के 3 रंगों की अलौकिक आभा से इस प्रांगण को सरोबार कर दें। मैं अनुरोध करना चाहूंगी प्रिंसिपल सर से, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर साकेत गोयल सर से, अविरल सर से, आनंद सर से और केशव सर से कि वे ध्वजारोहण की पुनित परंपरा को संपन्न करें। I would like to request everyone to please take their seats, stand on their position for flag hosting followed by national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की हमारी आन बान और शान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यूं ही उन्मुक्त होकर ऊंचा और भी ऊंचा लहराए, इसी कामना के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीता औदित्य जी को कि वे आएं और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें।
Hello. Yeah. Thank you. Thank you so much, Chitra ma'am. Freedom should not be something you have to deserve. It's something you just naturally have. Something that no one can take away from you. So today we are here to celebrate our freedom with sanskars. We all have gathered here to mark the other landmark of success by celebrating the 75th Independence Day of our beloved country, India, which is totally dedicated to all the players who participated in Olympics. From the core of our hearts, welcome you all to today's function on the behalf of the entire DDPS family. Now is the time to welcome and to give the token of respect to all the guests present over here on the dais. In this episode of the program, I would like to invite respected planters. I would like to request Adarniya Shri Govind Maheshwari sir to give the token of respect to Dr. Saket Goyal, who is a very renowned cardiologist of Kota, and gave her precious services due to corona, due to pandemic. Thank you so much, Saket Goyal sir, for being here with us. Now I would like to request Sarika ma'am to give the token of respect to Shri Aviral Maheshwari sir. Thank you so much, Sarika ma'am. Now I request to Adarniya Shri Purushottam Sharma sir, manager of DDPS family, to give token of respect to Shri Anand Maheshwari sir. Now I would like to request Adarniya Shri Principal sir to give the token of respect to Shri Keshav Maheshwari sir. Thank you so much, sir. Now in this episode of the program, I would like to invite respected Shri Purushottam Sharma sir to inspire us with his motivational speech. जय भारत। आप आज अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसी मिशन को लेकर के और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी चले थे और उन्होंने आज हम ये अवसर हमें प्रदान किया। आदरणीय अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और हमारे और प्यारे बच्चों, आज हम देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं आपको सभी इस अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय काफ़ी पिछड़ा हुआ था। सभी देशवासियों ने अपनी लगन और मेहनत से तरक्की करके और इसको आज कई क्षेत्रों में अग्रणीय हमने बनाया है। साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल और तमाम मोर्चों पर हमारा देश काफ़ी तरक्की कर चुका है। परमाणु संपन्न क्षमता भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। साथियों, ये सत्य है कि आज़ादी मिलने के बाद भी कुछ समस्याओं से हमें लड़ना पड़ रहा है और उसके लिए हमारा देश, हमारा नेतृत्व उसके लिए काफ़ी अपनी प्लानिंग करके और इसके लिए आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर पधारे हुए डॉक्टर साकेत गोयल, जो कि वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं और कोटा की जनता को अपनी सेवाएं करीब 18 साल से मैं इनको जानता हूं, तब से ये दे रहे हैं और बहुत ही अपनी प्रतिभा के बल पर ये वो जो है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर,
तो डॉक्टर साहब क्योर के अलावा प्रिवेंशन के सेक्टर में भी काफ़ी हार्ट डिजीज के बारे में, अवेयरनेस के बारे में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। यहाँ वॉक और रन फिर पहले भी प्रोग्राम में आयोजित आ चुके हैं, इससे ताकि लोगों को अपने बीमारी से दूर रहें। प्रिवेंशन के ऊपर भी डॉक्टर साहब का काफ़ी फोकस है। कई बार इनके आर्टिकल, इनके मूल्यवान सजेशन आर्टिकल न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को मिलते रहते हैं, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Thank you so much, Purushottam sir, for your motivational speech. Now, I would like to request Shri Mittal sir to give the token of respect to Rajesh Maheshwari sir. Hello. Thank you so much, sir. Now I would like to request Purushottam sir to give the token of respect to PB Saxena sir. Now I request to Shri Narendra Mittal sir to give the token of respect to Shri Lalit Maheshwari sir. Now I request Shri Mahendra Sharma sir to give the token of respect to N.K. Maheshwari sir. Now, to proceed the episode, I would like to request Shri Purushottam Sharma sir to give the token of respect to our adorable, regardable Shri Govind Maheshwari sir. Thank you so much, Purushottam sir. Thanks a lot. Poonam ma'am, now it's Poonam ma'am, it's over to you. Thank you, Neeta ma'am. Vande Matram. India is a treasure trove of knowledge, wisdom, and heritage. From kings to kingdoms, town planning to artistry, scholars to astronomers, from philosophers to astrologers, gurus to shishyas, warriors to strong women character, Mangal mission to COVID vaccine. The list of India's brilliant achievements in the past, present, and for the future goes on and on. All this is because of our valued sanskars that we are one of the most envied nation in the world. In the words of Nobel laureate Martin Luther, I quote, "To other countries I may go as a tourist, but to India I come as a pilgrim." Our India is considered sacred from times immemorial. हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिसे विश्व में कभी कोई चुनौती ना दे सके। ऐसा शुद्ध चरित्र दीजिए जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाए। हे मातृभूमि, तुम्हें सदा नमस्कार। Let us welcome our team for a beautiful prayer. Namaste Sada Vatsale Matrabhumi, Namaste Sada.
जय भारत। जय भारत। That was indeed a marvelous performance. Next, I would like to invite an eminent personality on stage who does not need any introduction. His name speaks for itself. His exemplary life is an idol for many. In short, he is a walking institution in himself. So please allow me to invite Dr. Govind Maheshwari sir, patron DDPS, on stage to address us. Sir, please come on stage. वंदे मातरम। जय भारत। भारत माता की इस उद्घोष के साथ हमारे राष्ट्रीय पर्व को आज सामूहिक रूप से इस विद्यालय परिसर में, शाला परिवार में एकत्रित होकर हमारे मध्य, हमारे नगर की एक बहुत ही लोकप्रिय अग्रणी सेवा कार्यों को समर्पित विभूति, चिकित्सीय क्षेत्र की महानता को आत्मसात करते हुए सबके दिलों पर राज करने वाली एक शख्सियत डॉक्टर साकेत जी गोयल का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस
परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में। यही कहूंगा कि हमारे दिलों में भारत बसता है, हमारे दिलों में कुछ न कुछ विचार उमड़ता है, लेकिन इस दिल में यदि कोई अशुद्धि आ जाए, कोई कमी आ जाए, कोई दूर पास हो जाए, कोई कम ज़्यादा हो जाए, तो उसको देख कर संभाल कर ठीक करने का कार्य डॉक्टर साकेत गोयल करते हैं। फिर वो बिना चीर फाड़ के हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन वो भी करनी पड़ जाए, इसका कोई पुर्जा बदलना पड़ जाए, तो उसको बड़ी मुस्तैदी से, बड़े अपने अनुभव से हजारों हजारों लाखों लोगों के दिल पर राज करने वाले। इस अवसर पर आज नव भारत के निर्माण में युवाओं की महत्ता और इस महत्ता को समझने की दृष्टि से एलन परिवार की भावी पीढ़ी जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने अभिनव अनुभव कार्यक्रम को लेकर आगे आ रही है, नई शिक्षा के साथ, नई तकनीकी के साथ, उनको शाला परिवार में आज आनंद माहेश्वरी, अविरल माहेश्वरी और केशव माहेश्वरी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिशा डेल्फी विद्यालय परिवार के प्रमुख डॉक्टर इंदु दुबे प्राचार्य, आपका अभिनंदन करते हुए इस अवसर पर दिशा डेल्फी एजुकेशन सोसाइटी के हमारे सभी मानद सदस्य, सचिव पीबी सक्सेना जी, ललित जी माहेश्वरी, नरेंद्र जी माहेश्वरी, नयन जी गांधी, नरेंद्र जी मित्तल, महेंद्र जी शर्मा, मेरे अनुज राजेश माहेश्वरी, आप सब इस अवसर पर आज शिक्षा के इस मंदिर में उपस्थित हैं। आपका स्वागत करते हैं। किसी का नाम मेरे से उच्चारित होने से, नितेश जी शर्मा और भी अन्य एलन परिवार के सदस्यगण जो अपने अपने संस्थान के कार्यक्रम के तुरंत बाद इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, सबका अभिनंदन करता हूं। लेकिन अभिनंदन की भावना जो मेरे हृदय में सबसे ज़्यादा दृढ़ता से है, वो आप शाला परिवार के सभी समर्पित शिक्षिकाएं, शिक्षकगण, प्राध्यापकगण, आप सबके प्रति नमन करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए शाला परिवार के सभी कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं, सबके प्रति हृदय के भावों को समर्पित करता हूं। ये स्वतंत्रता का दिवस पर्व के रूप में प्रतिवर्ष हम मनाते हैं और अपनी आज़ादी को पुनः अपने हृदय में स्मरण करते हैं, जिस आज़ादी को पाने के लिए अनेक कुर्बानियाँ, अनेक समर्पण, अनेक त्याग, अनेक जीवन, अनेक तप, अनेक लोगों ने कुछ नहीं, क्या नहीं किया, उन सबको याद करते हैं। और आज हम 75वें वर्ष में आ गए और जैसा कि आप सबको जानते हैं, हमारे भारत की सरकार ने इस 75वें वर्ष से लागू होने वाले 1 वर्ष तक, यानी जब हम अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया है। बहुत बड़ी बात होती है किसी के जीवन में रजत महोत्सव, स्वर्ण महोत्सव और अमृत महोत्सव का अवसर आता है। जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो हम सबके हृदयों में, चूंकि हम कोई रजत अवस्था में है, कोई स्वर्ण अवस्था में है, तो हमें गौरव होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस आगे बढ़ने में शिक्षा की महत्ता जबरदस्त है। उचित शिक्षा दीक्षा जब तक हम नहीं देंगे हमारी नवीन पीढ़ी की, जो जीवन मूल्यों के साथ हो, संस्कारों के साथ हो, और जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना हो, जिसमें परस्पर त्याग समर्पण की भावना हो, जिसमें माता पिता के प्रति कृतज्ञता की भावना हो, जिसमें अपने कर्तव्य का बोध कराने का जो एक हमारा ध्येय है, उसको हम सब लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा इस अवसर पर कि पराधीनता के भावों को हम अपने तन से, मन से और वचन से, सभी से निरंतर दूर करते रहें। जैसे हमने कोरोना को हराने का एक अभियान चलाया, पूरे विश्व ने, पूरे भारत ने, चिकित्सा क्षेत्र के बंधुओं ने, इनके साथ प्रशासनिक सेवाओं ने, पुलिस ने, और आप सब ने भी इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाई और अपने अपने को राष्ट्र की नियमावली में, राष्ट्र की मर्यादा में, जैसे वैक्सीनेशन सबको करना है, तो आप तत्पर होकर उत्साहपूर्वक अपने वैक्सीनेशन को कर रहे हैं। आने वाले समय में यह वैक्सीनेशन इस बीमारी से लड़ने के लिए, इससे निजात पाने के लिए, और अवस्था के अनुसार युवाओं में आ गया है, 18 वर्ष से ऊपर है, हो सकता है कि छात्र छात्राओं के लिए भी यह नियमावली आए, तो हम सबको उन सब व्यवस्थाओं में अपनी अपनी भूमिका, अपना अपना सहयोग देना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े हर्ष का विषय है कि एक सेक्टर, शिक्षा का क्षेत्र जो लगभग 1.5-2 साल से प्राय बंद था, खुला इसलिए था कि हमने बंद में भी अपने आप को जोड़े रखा तकनीकी से, और विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उनके कक्षा में प्रमोशन के लिए पढ़ाई की जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से आप सब ने प्रदान की, इसलिए बच्चों ने
अपने इस वर्ष के नुकसान को उतना नहीं होने दिया और अगली कक्षा में उन अग्रसर हुए। ऐसे रिजल्ट्स सबके आए। तो इस अवसर पर बस यही कहते हुए कि हम अपने आप को पराधीन न माने, अपने मनों पे विजय करें। एक गीत की पंक्तियां थी ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। नहीं, बजाना नहीं है मैं तो। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। खुद की जय का मतलब मेरी जय नहीं, मेरे मन के ऊपर मेरा नियंत्रण है। मैं अपने मन के अधीन नहीं हूं। मेरा मन, मैं जैसा चाहता हूं, जो उचित है वो करता है। किसी किसी का नाम मनजीत होता है ना, उसका अभिप्राय यही होता है। तो हम अपने मन को मजबूत बनाएं, उस पर विजयश्री हासिल करें, उसके अंदर अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्तव्य का हमें निरंतर बोध हो, और हम राष्ट्र प्रेम तक के अपने कर्तव्य को निर्वहन करें। जो प्रारंभ हो जाता है स्वयं के प्रति, सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखें। आप अपना अच्छा आचरण, अच्छी दिनचर्या, अच्छा खान पीन, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप उदाहरण हैं, आप प्रणेता हैं, आप देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आपके पीछे पीछे नौजवान, नव पीढ़ी आ रही है। तो आज ऐसा कुछ संकल्प लें, उस संकल्प को और मजबूत करें कि आने वाले समय में और जितनी बड़ी चुनौतियां, चाहे वो कोरोना जैसी हो या और किसी भी तरह की हो, हर चुनौती का हम सामना करेंगे और उस गौरव का अनुभव करेंगे हमारे माध्यम से, जिस राष्ट्र के निर्माण में हमारी आहुति के द्वारा हो रहा है। एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, एज ए शैक्षणिक संस्था से जुड़े हुए किसी भी रूप में कर्मचारी के रूप में, मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले मातृ प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना में एक नया अभियान जो प्रारंभ हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि इस विद्यालय ने इसको पहले ही लागू कर दिया कि हम परस्पर संबोधन में और अपने विद्यार्थियों से, अपने अभिभावकों से सबसे पहले जो संबोधन कर रहे हैं वो कह रहे हैं जय भारत, क्योंकि हमारे देश का नाम भारत था, भारत है, भारत ही रहना चाहिए आगे भी। इस देश को दो नाम से नहीं बोला जाए, और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हर स्तर पर हमने अभी प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, माननीय ओम बिरला जी व्यक्तिगत भेंट कर कर उन सबको उन ऐतिहासिक तथ्य और तर्कों के आधार पर वो सब ज्ञापन दिए हैं, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम, जो गुलामी के काल में कहीं 200-300 वर्ष पहले मुगलों ने चाहे हमारे ऊपर शासन किया हो, शोषण किया हो, चाहे अंग्रेजों ने किया हो, लेकिन हम भारतीय इस पुरातन संस्कृति को वापस स्थापित करने में, अपने देश के नाम को भारत करने की दिशा में भी एक प्रण और संकल्प के साथ कि हम अब इंडिया की जगह भारत प्रयोग करेंगे प्राय अपने संबोधन में। आगे इसका संवैधानिक संशोधन होकर ये हमारी माननीय सरकार, लोकसभा इसको जब पारित कर देगी नियम के रूप में, तो पूरा विश्वास है कि आगामी स्वतंत्रता वर्ष तक हमारे देश में इस भारत माता की गूंज जय भारत के नाम से होने लगेगी, और उसमें भी हम अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसके ऊपर हमने आज से एक और कड़ी जोड़ी है। हमने लाखों एलन परिवार के बच्चों, विद्यार्थियों और परिवारों को आज इस संदेश के माध्यम से अवगत कराया है। प्रतीक के रूप में या उदाहरण के तौर में वो आपको भी हम प्रेषित कर देंगे आपके ग्रुप में, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम उसको जन जन तक पहुंचाएंगे, और राष्ट्र के प्रति अपने नाम के गौरव का भी हम अनुभव करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः आप सबको शुभकामनाएं, बधाई और गर्व के साथ ये कहते हुए कि जय भारत विराम देता हूं। हाँ, नाम लेने में मेरे कुछ कमी रह गई, कुछ और भी बंधु अभी हमारे मध्य पधारे, उन सबका स्वागत, अभिनंदन शाला परिवार की ओर से, और ये विश्वास दिलाते हुए कि ये शाला एक अनुकरणीय कार्य करेगा राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि इसको आप जैसे सभी विद्वानों का और सभी सेवाभावी, समर्पित, अनुभवी लोगों का प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर योगदान मिल रहा है। हमारे विद्यालय की इस समर्पित श्रृंखला में पीवी सक्सेना जी का, पुरुषोत्तम जी का और सबका जो अभी संबद्धता हुई है, जुड़ा हुआ है, उस बात से हम सब गौरवान्वित हैं। आपके प्रति पुनः धन्यवाद और कृतज्ञता करते हुए धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your ever motivational words. हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्रस्तुत गीत सुनकर मैं बस यही कहना चाहूँगी, माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं, वो संकल्प नहीं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यूनाइटेड बाय इमोशंस, जो कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स 20 का एक आदर्श वाक्य रहा है।
खेलों का ये महाकुंभ यूँ तो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते इसका आयोजन समय पर नहीं हो पाया। कोरोना महामारी के चलते इसके आयोजन के लिए कुछ नियमों में बदलाव भी हुआ और इसका आयोजन बंद दरवाज़ों के बीच हुआ। लेकिन खिलाड़ी कहाँ अपने जज्बात देखता है, वो तो बस ओलंपिक में मेडल जीतने के ख्वाब देखता है। कोशिश की लगातार, प्रयास भी है निरंतर, मेहनत की है जमकर, तो जीत है मेरे संग। और वही कर दिखाया हमारे देश भारत ने। टोक्यो ओलंपिक में भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ 48वें पायदान पे रहा। आज हम सबके लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। यही नहीं, हमारे खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स में अपना बहुत अच्छे से भागीदारी दिखाई और बहुत ही विभिन्न प्रकार के खेलों में अपना प्रतिनिधित्व किया। यह सब देखकर हम खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करते हैं और यही प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं आप सबके समक्ष एक नृत्य प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं, चक दे इंडिया। इस प्रस्तुति के माध्यम से वो बस यही कहना चाहते हैं, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीर देता है, रंग हमको भरना पड़ता है, रंग हमको भरना पड़ता है। जय भारत। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन तकदीर खुद लिखने का मजा कुछ और ही है। सन 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में एक कदम जीत की ओर बढ़ाकर भारत ने इतिहास रच दिया। ओलंपिक के वे क्षेत्र जिनमें भारत कभी सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया था, टोक्यो ओलंपिक में उन क्षेत्रों तक पहुंचकर भारत ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया। तैयारी है टोक्यो की तैयारी है। नीरज का सीना चौड़ा, रानी की हॉकी का जादू, पीवी सिंधु की तेजी, मेरी कौम की ताकत बेकाबू, मेरी कौम की ताकत बेकाबू। विनेश को सबने माना है। भाकर वाह तेरा क्या गजब निशाना है, तेरा क्या गजब निशाना है। दुनिया को अपना जलवा दिखाएंगे। विभिन्न खेलों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय खिलाड़ी पूरे जोश व उत्साह के साथ मैदान में उतर रहे हैं। संपूर्ण विश्व की नज़रें भारत की ओर है और भारत को ये दिखाना है कि उसमें कितना दमखम है। मुश्किल वक्त में भी हम न खोए हौसला, मिलके साथ चलने का यूं कर ले फैसला। मिट्टी हम जो चूमे तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर चाहिए सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां। सफलता के पड़ाव पर आगे बढ़ते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल जीतकर कई पदक अपने नाम किए, किंतु अनेक खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पूरी जोश के साथ पूरी जान लगाकर सेमीफाइनल तक तो पहुँचे, किंतु कोई पदक नहीं जीत पाए। वे निराश हैं, हताश हैं और बोझिल मन से विजय का सपना चूर होते हुए
देख रहे हैं। हौसला न छोड़, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है जुदा। क्यों मेरी राहें मुझसे पूछे घर कहाँ है, क्यों मुझसे आके दस्तक पूछे दर कहाँ है। दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। गोल्ड स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का इतिहास रचने वाला है। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है वरना पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। जिंदा कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया। आज भर ले 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक यादगार पल बन गया।
भारत ने विभिन्न खेलों में 7 पदक हासिल किए, जिनमें एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक, रेसलर रवि कुमार दहिया ने रजत पदक, शटलर पीवी सिंधु ने कांस्य पदक, रेसलर बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक, बॉक्सर लवलीना बोरगेहेन ने कांस्य पदक तथा पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किए। That was a wonderful performance. Now, I would like to request Mr. Aviral Maheshwari sir, who is working towards connecting your minds to strive success and achievement, to come on the dais and say a few words. हेलो हेलो हेलो। जय हिंद, जय भारत। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता हूँ जिनकी वजह से हम ये दिन आज देख पा रहे हैं, और उनके इस जिंदगी भर के कुर्बान को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि हम जैसे यूथ, नई जनरेशन आज इस स्वतंत्र भारत में रह पा रहे हैं। और उन्हीं को डिवोट करते हुए मैं आज उनके लिए गाना गाना चाहूँगा। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे या नहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो 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 सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ घूम के रंगड़ा पा न सका,
आबादात रहे उस गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा फिर खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट पैराग्राफ, और जो अपने सैनिकों को डेडिकेट करते हुए। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for your words and this beautiful song. Now we are pleased to have Mr. Anil Maheshwari sir with us. I would request him to come on the dais and say a few words. Hello. First of all, I would like to wish you, everyone present here, Happy Independence Day. जैसा कि अविरल सर और गोविंद सर ने ऑलरेडी हमारे सैनिकों के बारे में जो बातें बोली है वो बहुत बढ़िया बातें हैं। एक बात जो मेरे मन में आती है हमेशा कि लास्ट 1.5 years जिस तरीके से पूरे विश्व में, नॉट इवन भारत, पूरे विश्व में जो कोविड की वजह से चीज़ें अपन को फेस करनी पड़ी, जो चैलेंजेस अपन को फेस करने पड़े, उसमें से सबसे बड़ा एक चैलेंज ये था कि बच्चों को घर में कैसे अपन एजुकेशन पहुंचाए। और क्योंकि यहाँ पे सब टीचर्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से टीचर्स ने यहाँ पे फिजिकल में जो नुकसान अपन को हो पाता, जो बच्चे नहीं कर पाते, उसको बहुत हद तक कम करने की जो प्रयास आप लोगों ने करे हैं ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, वो बहुत ही कहेंगे बहुत एक प्रशंसित बात है। और इस सब बातों के लिए मैं आप सबके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ कि प्लीज़ दिस इज़ द समथिंग वी हैव एक्सेप्टेड। और ये जो चैलेंज है ये आने वाले टाइम में हमें एक ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ और नए आविष्कारों को अपने भारत में लेकर आएगा जिससे अपने भारत और ऊपर की तरफ प्रोत्साहित करेगा। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन जय हिंद, जय भारत। Hello. Yes. Thank you so much, sir. Your words are really motivational and valuable for us. Balika, aha balika, navyuga, janata, aham balika. Naham bala, durbala, adi shakti, ahambika. Wondering, what did I just say? Well, let me phrase it you for in simple words. I quote, I'm a girl of modern times. I'm not feeble nor powerless. I'm Adi Shakti, I'm Ambika. सशक्त महिला, सशक्त समाज, देश के विकास दोनों में एक दूसरे के पूरक है। देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण
यानी महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। भारत में महिलाएं शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला, संस्कृति, सेवा क्षेत्रों, विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में भागीदारी रखती हैं। सशक्त महिलाएं एक मजबूत समाज का निर्माण करती हैं। So what we are waiting for? Our next performance of the day depicts the different roles of a woman, because I firmly believe that if you educate a man, you educate an individual. However, if you educate a woman, you educate a whole family. Let's put your hands together for our next performance. Thank you. Jai Bharat. नारी क्या है? नारी शक्ति है, त्याग है, बलिदान है, शांति और ममता की देवी है, सम्मान है, अभिमान है। आइए देखते हैं नारी शक्ति के विभिन्न रूप। गृहिणी के रूप में, गृहिणी के विभिन्न रूपों का आकलन करना असंभव है। वो कभी पति का हौसला बनकर, तो कभी सास ससुर का सहारा बनकर, तो कभी बच्चों की दोस्त बनकर जीवन का पाठ सिखाती है। इसलिए कहा जाता है, गृहिणी से स्वस्थ परिवार, परिवार से स्वस्थ समाज और समाज से एक स्वस्थ देश का निर्माण होता है। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। गुरु के रूप में अज्ञान को दूर करने वाला, ज्ञान की अलख जगाने वाला और सही गलत का अंतर बताने वाला, वह होता है गुरु। एक गुरु ही है जो नई पीढ़ी को आने वाले कल के लिए मजबूत बनाता है। वह गुरु ही है जो हमें अपने पंख खोलकर ऊंची उड़ान भरना सिखाता है। गुरु के द्वारा ही किसी देश या राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर। फूक मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर। फूक मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर 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 खोल दे पर।
चिकित्सक के रूप में। भगवान के बाद एक चिकित्सक को ही हम अपना भगवान मानते हैं, जो हमारा जीवन बचाते हैं। कोरोना काल में अपने घर परिवार व बच्चों को छोड़कर एक चिकित्सक के रूप में नारी ने निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करके देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसीलिए हम गर्व से कहते हैं, जीती रहो भारत की बेटी। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। पुलिस व सैनिक के रूप में, नभ हो थल हो या हो जल, कदम पड़े जब नारी के थर आया ये भूतल। नारी पुलिस व सैनिक के रूप में देश से अपराधों का खात्मा करती है, देश की सुरक्षा के प्रति अपने फर्ज को निभाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का ध्वज लहराती है। पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने वाली, हाथों से लोहा पिघलाने वाली इस नारी शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। गन गगन गन 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 गन, हाथों में पिघलता है लोहा गगन गन, ना उम्मीद न कोई लगी, मेरा सब कुछ मेरा हौसला गगन गन, हिम्मत है मेरी तकदीर, मुझे कम न किसी से आकियो, मुझे कम न किसी से आकियो, तूने जाने पागलपन गन गगन गन गन गगन 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 गगन, गुलाबी गगन 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 गुलाबी गगन 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 गुलाबी गगन 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 गुलाबी। पायल घुंघरू नहीं तलवार बजे खन खन गगन 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 गुलाबी गगन 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 गुलाबी गगन 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 गुलाबी गगन 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 गुलाबी। This was really a graceful performance. Now it's really an honor for us as we have one more gem with us. So I request Mr. Keshav Maheshwari sir to come on the dais and share his thoughts with us.
रिस्पेक्टेड गेस्ट सभी को वेलकम, रिस्पेक्टेड टीचर्स और स्टूडेंट्स, इट्स एन ऑनर आज यहाँ पर खड़े होके आप सभी के सामने आप सभी को संबोधित करने के लिए। हमारा देश वीर शिवाजी राणा प्रताप की सरजमी का देश है, जिसे फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह, आज़ाद, उन्होंने अपने खून से सींचा है। हो सकता है कि आज हमारा देश कई देशों से पीछे हो, लेकिन हम सब ये ज़रूर मानते हैं कि हम में काबिलियत है, हमारे खून में काबिलियत है कि हम इसको महान बना सकते हैं। और आज भी अगर 75वें वर्ष में हमारा खून नहीं खोल रहा है तो वो खून नहीं पानी है। हम सबके भीतर बहुत सारे भाव हैं हमारे देश को लेके, तरह तरीके के। सभी के भाव इस देश को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत मान्यता रखते हैं। सभी के भावों का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक गीत के माध्यम से अपने भावों को ज़रूर आपके सामने रखूंगा। बड़ा ही फेमस गीत है, अगर हम सब साथ में गाएंगे तो शायद हमारी जो एक कलेक्टिव आवाज़ है वो और 10 गुना बढ़ जाएगी। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। रोकूं मैं जहाँ तेरी पहचान रहे तू, रोकूं मैं जहाँ मेरी पहचान रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन। आखिर में 3 शब्द बोलना चाहूंगा। वर्क फॉर अ कॉज, लिव फॉर अ पर्पज एंड डाई लाइक अ लेजेंड। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Your words have really soaked all of us in deep thought. And thank you for the wonderful song. Vande Matram. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा. It is a very famous proverb that need is the mother of invention. Like this, Atmanirbhar Bharat is a need of an hour for Indian economy, as well as for all Indians during pandemic COVID-19. Atmanirbhar is not only a term, but it is a vision of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, to enable India to overcome from this difficult time during pandemic COVID-19, which is never seen earlier. I feel privileged to now invite our next super duper team who will raise awareness on Atmanirbhar Bharat. Yes, you are right. Hamara Bharat. Jai Bharat.
शिक्षक लाए हैं एक नाटक। हे आज आजादी का त्योहार, आप सबको हमारा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भारतवर्ष को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो सुनिए भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी, DDPS की जवानी, DDPS की जवानी। आओ देखो नाटक, देखो नाटक, आओ नाटक देखो नाटक, देखो नाटक, आओ नाटक देखो नाटक, देखो नाटक, आओ नाटक देखो नाटक, देखो नाटक, अरे सुना आपने, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। हाँ तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर। सभी मास्क पहनकर ही घर से निकलें। कम से कम 20 सेकंड तक बार बार हाथ धोएं और 2 गज की दूरी रखें। आप सब ये सुन तो रहे हैं, पर मान रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। अब तो सावन आ गया, मॉनसून आ रहा है, तो पिकनिक करेंगे, एंजॉय करेंगे, पिकनिक करेंगे, एंजॉय करेंगे। और त्योहार आ गए तो चलो शॉपिंग पे जाएं जाएं, किसी होटल में खाएं खाएं, चलो शॉपिंग पे जाएं जाएं, किसी होटल में खाएं खाएं। पापा शादी का कार्ड आया है। हाँ तो चलो चलो घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। मेरी भाई नहीं, मेरी भी नहीं आई। कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम। तो आप भी इस वैक्सीन की 2 डोज लगाएं और कोरोना मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, दे सकते हैं। वैक्सीन संजीवनी है, हम सबकी जीवनी है। वैक्सीन लगवाना, वैक्सीन लगवाना, वैक्सीन संजीवनी है, हमारी जीवनी है। वैक्सीन लगवाना, वैक्सीन लगवाना। भारत की आत्मनिर्भरता की जब बात चली है तो ये बात यहाँ थमेगी नहीं, बल्कि और आगे तक जाएगी, आगे तक जाएगी, आगे तक जाएगी। आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक, आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक, आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक, आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक। सब्जी वाले सब्जी, आलू ले लो, बैंगन वाले, टमाटर वाले। अरे काकी सुनो सुनो सुनो। ए कौन काकी? अरे दीदी सॉरी हाँ, सॉरी। ये आलू कैसे दिए? आलू 20 रुपए किलो है। और ये टमाटर कैसे दिए? टमाटर सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। बोलो बोलो। 25 के किलो। ये कम हरे, कितने हरे कच्चे टमाटर 25 रुपए किलो। अरे अपने गालों से मिला लो, बिल्कुल लाल लाल है। 1 किलो पैक कर देना। और ये भिंडी कैसे दी? भिंडी 40 की किलो लगेगी मैडम। लेकिन ये तो मोटी मोटी है। अरे भिंडी लेडीज फिंगर
अपनी उंगलियों से मिलाओ, बिल्कुल पतली पतली। अच्छी सब्जी वाली है ना? हाँ चलो ऐसा ले करो लेते हैं। आप 1 किलो ले लो। हाँ 1 किलो ले लो। 1 किलो भिंडी पैक कर दो, 1 किलो आलू पैक कर दो, 1 किलो टमाटर पैक। धनिया मिर्ची, धनिया मिर्ची तो साथ में मिलेगा, लेकिन मुफ्त में नहीं। मुफ्त में कुछ नहीं। ठीक है, आधा किलो बैंगन भी ले लेती हूँ। आधा किलो बैंगन भी पैक कर दे। अरे पहले डिसाइड कर लो। आप पैक कर पैक दीजिए, कर आधा दीजिए, किलो आप पैक बैंगन, कर 1 किलो भिंडी, 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू। पॉलिथीन नहीं मिलेगी। नहीं, हम अपना बैग लेकर आए हैं। दोनों को साथ में दे दो। हाँ बिल्कुल साथ में दे दीजिए। ये लीजिए आपकी सब्जी। पैसे कितने हुए? पैसे? हाँ पेटीएम करो। पेटीएम करो, पेटीएम करो। अरे जरा जोर से बोलो। पेटीएम करो, पेटीएम करो। पैसे आ गए? पैसे आ गए आपके? बिल्कुल पक्के। सावन का महीना पवन करे शोर। अरे चुप, पवन नहीं बल्कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो कर रहे हैं शोर। भूख लगी, भूख लगी, चोरों की भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, चोरों की भूख लगी। मुर्गे की मांग में कोयलों की भूख लगी, मुर्गे की मांग में कोयलों की भूख लगी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? मम्मी मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो ना। बना दो ना, बना दो ना। बाहर इंद्रदेव बरस रहे हैं और घर पर कुछ खाने को है भी नहीं। क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? टेंशन क्यों लेते हो? ज़ोमैटो है ना? अरे ज़ोमैटो कर दो। हाँ हाँ ऑर्डर कर दो। कर दो ना। तो बताओ क्या मंगाऊं? पाव भाजी, पाव भाजी। और दोस्त कैसे हो? बहुत बढ़िया। बढ़िया हो? अच्छी तरह से हूँ। अच्छा। अरे किसी ने पाव भाजी ऑर्डर की है। चलो दोस्त अब मैं चलता हूँ। ठीक है यार, तो बहुत तेज धूप वो आ रही, बारिश हो रही है। तुम्हें 5 मिनट में पहुंचना है ना? 5 मिनट नहीं, मुझे 10 मिनट में पहुंचा और मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि हम अपने वादे के पक्के होते हैं। पक्के होते हैं, पक्के होते हैं। टिंग टोंग। देखो देखो खाना भी आ गया। अरे भैया आप तो टाइम से पहले ही आ गए। बिल्कुल मैम, हम अपने वादे के पक्के होते हैं। दीजिए मैम। थैंक यू भैया। थैंक यू मैम। चलो चलो अब जल्दी से खाना खा लो, फिर मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा है। अरे कैसे जाओगे? बाहर तो इतनी बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अरे ओला है ना? तो अभी ओला ऑर्डर कर दो, ओला मंगवा लेते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स ने हमारे जीवन को कितना सुगम बना दिया है। आए विश्व पर आपदा कोई, सेवा का अवसर न खोना। हे भारत, तुझको आत्मनिर्भर होना है, आत्मनिर्भर होना है, आत्मनिर्भर होना है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है
Such a great message with this Natak, and this really deserves a big round of applause, and also our Atmanirbhar Bharat. I consider it a great honor to welcome our chief guest, Dr. Saket Goel, onto the stage for sharing his thoughts with us. नमस्कार, जय भारत, चक दे भारत। मैं जब भी दिशा डेल्फी के प्रांगण में आता हूं, मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि इस प्रांगण के कण कण में कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति है, जो मैंने हमेशा महसूस किया आपके हर प्रोग्राम में। और आज जब मैं यहाँ आया तो ये साफा सम्मान और संस्कृति का प्रतीक, ये झंडा भारत का प्रतीक, मैं समझता हूँ आज का दिन मेरे जीवन में एक अविस्मरणीय पल रहेगा। और इस सब के लिए एलन परिवार का और दिशा डेल्फी शाला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, उस सब की आपको बहुत बहुत बधाई। आज का दिन है उन शहीदों का नमन करने का जिन्होंने हम सबको जन्म दिया इस स्वतंत्र भारत में, और आज का दिन है उन सैनिकों का भी नमन करने का जो इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। खतरा 75 साल से टला नहीं है, आज भी हमारे उत्तर पूर्व पश्चिम सब तरफ से खतरा है। खतरा बाहरी भी है, खतरा अंदरूनी भी है, उसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना है। और जो भी शक्तियाँ, जो भी सैनिक इस स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायता कर रहे हैं, हम सब उनका नमन करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे अग्रज गोविंद जी का, राजेश जी का, सभी उपस्थित प्रिंसिपल सर का और सीनियर फैकल्टी का। और आज एक ऐतिहासिक क्षण है जबकि एक परिवार की नई जनरेशन प्रयास कर रही है आगे बढ़ने का, और उसके लिए मैं एलन परिवार को बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही सभी शिक्षकगण, सभी अध्यापकगण, आपको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चा, जब एक परिवार, एक पेरेंट्स बच्चा आपके पास भेजते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, वो कोचिंग में हो, वो आपके पास अपना बच्चा नहीं भेजते हैं, अपने परिवार का, अपने देश का भविष्य भेजते हैं। और जिस प्रकार से आप सब उसको आगे बढ़ाते हैं देश की दिशा में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले 1.5 साल में, कोरोना काल में, आप लोगों ने जिस प्रकार से उस बच्चे के भविष्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने दी, 1.5 साल के अनवरत प्रयास आपके ऑफलाइन ऑनलाइन चले हैं, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत नमन। आज बच्चे नहीं हैं, वरना बच्चों को संदेश देने में मैं हमेशा कहता हूँ, अध्यापक भी, ज़्यादातर अध्यापक शायद मेरे से छोटे ही हैं, इसलिए मैं उनको संदेश तो दे ही सकता हूँ कि हमें समाज के स्तर पे, हमें देश के स्तर पे अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। मैंने एनुअल फंक्शन अटेंड किया है, गोविंद जी भाई साहब भी उसमें थे, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ के बड़ी मुश्किल से अपने अंदर भारत और भारत की संस्कृति को बचाया, ये एक फैक्ट है। इतना फ़र्क है एक कैथोलिक स्कूल में और इस स्कूल की परिकल्पना में कि मैं वाकई आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के स्कूल और खुलें जो कि भारत की संस्कृति को और भारत की परंपराओं को बढ़ावा दें। आप सबका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अन्य भी एसोसिएशन मेरा आप सबसे हमेशा रहा है, राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी गोविंद जी ने बात की समाज सेवा की, तो हम समाज सेवा तभी कर पाते हैं जब आप लोग जुड़ते हैं। और मैंने कोई भी दिशा में कभी भी प्रयास किया, आप लोग बैकग्राउंड में हमेशा खड़े थे। अभी भी कोरोना में जब हमने आर्ट वाइज कोरोना किट्स अनाउंस किए, तो राजेश जी ने एक ही दिन में उस प्रोजेक्ट को 4 गुना कर दिया अपने कंट्रीब्यूशन से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप लोगों का सपोर्ट रहा है, इतना बड़ा सपोर्ट कि वॉकरन मैं करूं, वॉकरन का मेन स्पॉन्सर रेजोनेंस हो, और दिशा डेल्फी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को 5 मार्क्स प्रैक्टिकल के अनाउंस कर दे। मैं नहीं समझता कोई भी स्कूल ऐसा कदम कभी स्वास्थ्य की दृष्टि में उठाता है। और आप सब लोग मैसेंजर हैं, तो मेरा मैसेज जब भी आप बच्चों से जरूर पहुंचाएं कि एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण, एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी है। तो आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए हम सब कृत संकल्प हों कि स्वस्थ जीवन शैली, मैंने कई बार आपके असेंबली में आगे बात करी है स्वस्थ जीवन शैली के बारे में, तो जब तक हमारा परिवार स्वस्थ नहीं है, तब तक देश स्वस्थ नहीं है, देश समृद्ध नहीं है। तो आप सबका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सब स्वयं के लिए, आप स्वयं के परिवारों के लिए, और साथ में ही अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्वस्थ जीवन शैली का मार्गदर्शन को हमेशा देते रहें। मैं हमेशा आपके जो भी उपकार रहे हैं, जो भी सहयोग रहा है, उसके तले में दबा रहूँगा। और जहाँ भी मैं कहीं शाला परिवार के लिए, अन्य परिवार का सहयोग कर पाऊँगा, मैं हमेशा आगे बढ़ के सहयोग करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, चक दे भारत। Thank you so much, sir, to enlighten us by your motivational words.
DDPS के सितारों के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमारे सामने रखी है। साथियों, आपने भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी बहुत ही कम शब्दों में लेकिन प्रभावपूर्ण तरीके से इस तरीके से यहाँ पर बयां की है कि फ़िज़ा में देशभक्ति के रंग भर दिए हैं। बहुत खूब, अति सुंदर। Thank you for this beautiful and enchanting performance. We are celebrating our 75th Independence Day full of enthusiasm and patriotism. हमारा ध्येय वाक्य है संस्कार से सफलता तक। जीवन में यदि सफलता पानी है तो संस्कारों को मजबूत बनाना होगा, देश के कर्णधारों का चरित्र निर्माण करना होगा, क्योंकि शील, विनय, आदर्श श्रेष्ठ था, तार बिना झनकार नहीं है। शील, विनय, आदर्श श्रेष्ठ था, तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. To enhance this feeling, I am going to invite our teachers for this song.
A huge round of applause for our talented teachers. Indeed, a very wonderful message depicted through this song. Now, as we proceed towards the end of today's celebration, I would like to take the opportunity to invite our Honorable Principal Sir to come on dais and present the vote of thanks. Please welcome him with a huge round of applause, everyone. Hello. Wishing you all a very happy Independence Day. Good morning, one to all present here. Jai Bharat. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this wonderful event to all dignitaries assembled here. There is a series of dignitaries, so let me just give the thanks. I would like to thank our chief guest, Dr. Saket Goyal ji, who honored this function with his inspirational thoughts. I would like to thank Sri Govind Maheshwari ji, patron of DDPS, has given motivational speech for us. I would also take the opportunity to thank Rajesh Maheshwari sir. He's kindly agreed and he's here. Thank you, sir. Now, it is a time to give the thanks to all 3 stars of the future. They are ambassadors of the coming new educational institutions. So thank you very much, you all 3, Aviral Maheshwari sir, Anand Maheshwari sir, and Keso Maheshwari sir. You kindly agreed to come for this function. Thank you very much. Now, DDES, thank you very much DDES executive members and all members associated with DDES. Thank you very much to all students, those who are not present. I think either they are observing right now or they will certainly see this program of their school. Thank you very much to all coordinators, teachers, admin staff, and backstage performer and D group members. Certainly, it was very difficult when the support of the D group members and those who are backstage performer, if they will in the right and the very hard way to just accomplish the task, certainly this was a great success. At the end, I would like to certainly give a thanks to all my teachers. In a short span of time, they did a wonderful, mesmerizing performance for all audience. And certainly they deserve a loud applaud. And at the end, I would like to just give the thanks to all those who are security personals, those who are from from LN Group, each and every individual
has the vote of thanks from DDPS fraternity. So thank you very much for coming here and observing and enjoying this wonderful program by DDPS teachers. Thank you very much. Jai Bharat. If somehow I missed out any name, it is, please kindly forgive me. मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी का नाम या किसी के इस सम्मान में कहीं मैं किसी का नाम भूल गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ. धन्यवाद. जय भारत. Thank you, sir. Your motivating words really mean a lot to us. So I'll request the teachers, while you leave, please collect your sweets from gate number 2. I'll request every teacher to please stay here for a while for a good group photograph.